this video, we are going to study an Indian writer, Kamala Markandeya. She is very important for all competitive exams, especially HPSC and UGC NET exam. Let us start. Kamala Markandeya Introduction. She was fully known as Kamala Purnia Taylor or Kamala Purnaya, and later she came to known as Kamala Markandeya. She was born in 1924 मैसूर ब्रिटिश इंडिया मीन्स उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में मैसूर में 1924 में हुआ। उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से हुई और उन्होंने हिस्ट्री में एजुकेशन प्राप्त की। वर्कड ब्रीफली एज अ जर्नलिस्ट इन इंडिया बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड इन 1948। वो 1948 में इंग्लैंड चली गई, जिससे पहले इन्होंने कुछ समय के लिए एज अ जर्नलिस्ट इंडिया में वर्क किया। मैरिड एन इंग्लिश मैन बर्ट्रैंड टेलर, और इनकी मैरिज एक इंग्लिश मैन बर्ट्रैंड टेलर से हुई। नाउ लेट्स मूव टू हर करियर ओवरव्यू। इफ़ वी टॉक अबाउट हर करियर, she began her literary career with the post-independence Indian experience. That means इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद के समय से इंडियन एक्सपीरियंस के तौर पर अपने वर्क की शुरुआत की। She wrote mainly about Indian rural life. उन्होंने इंडियन रूरल लाइफ के बारे में लिखा। ईस्ट वेस्ट कल्चरल कन्फ्लिक्ट वर हर मेन टारगेट। वीमेन स्ट्रगल also present in her writings. Colonialism and its effects were her main themes. These were her main themes. First, Indian rural life. Next, East-West cultural conflict. Next, women's struggle and colonialism and its effects. She settled permanently in England but maintained strong ties to India. हालांकि she has permanently settled in England, but she had close ties, or we can say close bond to India. She has close bond with India. Now let us see what were her major works. These are Nectar in a Sieve, that was published in 1954, Some Inner Fury 1955, Silence of Desire 1960, Possession 1963, A Handful of Rice 1963, The Coffer's Dam 1969, Two Virgins 1973, The Golden Honeycomb 1977, Pleasure City, Shalimar 1982. These were a compact list of her all works, and now we will start with her major and important works in this lecture. In her works, Nectar in a Sieve is most important for all competitive exam. After that, Some Inner Fury and A Handful of Rice, also very important. Then Possession, Two Virgins, these are also worth to learn. And then A Silence of Desire, The Golden Honeycomb, Pleasure City, The Coffer Dam. These are less important and we can have only introduction about them. Now let's start with her novel Nectar in a Sieve, that is most and highly important for HPSC and UGC NET exam. Nectar in a Sieve in-depth story explanation. Part 1. Life begins in hope and quiet joy. Chapter 1 to 3. Rukmani's marriage. Rukmani is the youngest daughter of a once prosperous village headman. Rukmani village headman की youngest daughter है. At 12, she is married off to Nathan, a poor tenant farmer, because her family can no longer afford a good dowry. 12 ईयर की एज में उसकी शादी नाथन नाम के आदमी से हो जाती है, जो कि एक पुअर फार्मर है। क्योंकि ये शादी क्यों होती है? क्योंकि उसकी फैमिली एक अच्छा जो डॉरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो यहाँ हमें जो सिंबलिज्म मिलते हैं इस चैप्टर में वो क्या है? रुक्मणी अराइव्स एट हर न्यू हट with a pitiable dowry and sees a mud hut with thatch roof, symbolic of the life of hardship she is enduring. रुक्मणी जब अपने न्यू हाउस में जाती है तो वो उसकी एक झोपड़ी है जहाँ पर वो बहुत ही कम डॉरी लेकर आती है। ये एक मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी है जिसकी रूफ घास फूस की बनी हुई है। ये सिंबल है कि उसकी नई लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स हैं।
Despite her initial fear, Nathan turns out to be gentle and loving. Slowly, Rukmani finds happiness in the rhythm of rural life, working in the fields and growing vegetables behind the hut. शुरुआत में नाथन से उसे डर लगता है, लेकिन बाद में नाथन एक जेंटल और लविंग पर्सन होता है। रुक्मणी को रूरल लाइफ अच्छी लगती है और वो अपनी हट के पीछे ही वेजिटेबल्स उगाती है और खेतों में काम करती है। नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रगल एंड चेंज बिगिन। अभी तक जो उसकी मैरिड लाइफ है वो पॉवर्टी से तो भरी हुई थी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन वहाँ पर थी। स्ट्रगल एंड चेंज बिगिन पार्ट 2 में हम रीड करते हैं कि रुक्मणी की लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल और चेंजेस आने लगते हैं। इनफर्टिलिटी एंड वेस्टर्न इंटरवेंशन। आफ्टर द बर्थ ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड Iravadi or Ira, Rukmani doesn't conceive again for years. She grows anxious, fearing that she is barren. She secretly visits Dr. Kennington or Kenny, an English doctor serving the rural people. अब उसके पास एक चाइल्ड है जिसका नाम है इरा, जिसके बाद रुक्मणी फिर से कंसीव नहीं कर पाती, इसीलिए उसे बड़ी चिंता होती है और वो सीक्रेटली डॉक्टर कैनिंगटन के पास विज़िट करती है, जो कि एक इंग्लिश डॉक्टर है और गाँव के लोगों को ट्रीट करता है। यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट की कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। कैनी, वाई डोंट यू पीपल डू समथिंग अबाउट देयर कंडीशन। तो कैनी क्या कहता है कि तुम अपनी कंडीशन के बारे में कुछ क्यों नहीं करते। एंड रुक्मणी, वी एक्सेप्ट वट लाइफ गिव्स। हम वो सब एक्सेप्ट करते हैं जो जीवन हमारे लिए लेकर आता है। विथ कैनीज हेल्प शी कंसीव 5 sons इन क्विक सक्सेशन, बट द प्रोस्पेरिटी इज़ टेम्परेरी। अब इस डॉक्टर की हेल्प से, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो 5 sons कंसीव करती है लगातार, लेकिन जो उसकी प्रोस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं, वो टेम्परेरी होती हैं। Then starts the third part of the story. The tannery arrives, symbol of modernity. Tannery arrives, symbol of modernity. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी शो करता है ये पार्ट। टैनरी इज़ बिल्ट इन द विलेज। एट फर्स्ट इट सीम्स लाइक प्रोग्रेस, जॉब्स फॉर द पुअर, न्यू रोड्स, एक्टिविटी। यहाँ एक टैनरी बनती है जो कि प्रोग्रेस, जॉब और गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटी को सिंबलाइज करती है, लेकिन जल्दी ही क्या होता है, प्राइस ऑफ फूड गोज़ अप। खाने के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट। नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, मॉरल करप्शन भी बढ़ जाता है, ट्रेडिशनल लाइफ इज़ डिस्टर्प्टेड, और जो उनका आम सा साधारण सा जीवन था वो डिस्टर्ब हो जाता है। सन्स बिकम वर्कर देयर एंड स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम एग्रेरियन वैल्यूज़। रुक्मणी के जो सन्स थे, 5 sons थे, वो वर्कर बन जाते हैं इस फैक्ट्री के अंदर और धीरे धीरे वो एग्रेरियन वैल्यूज से, यानी कि जो कृषि की इम्पोर्टेंस थी उससे दूर चले जाते हैं। टैनरी रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इंक्लूडिंग इनटू द एग्रेरियन इंडियन वर्ल्ड। इट इज़ नॉट एन ईविल बट इट ब्रिंग्स कैटिक चेंजेस। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो कोई ईविल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही भयानक चेंजेस इस गांव के अंदर लेकर आते हैं। पार्ट 4 रिप्रेजेंट्स पर्सनल लॉसेस एंड सोशल डिके, डॉटर्स रिजेक्शन एंड सन्स करप्शन। इरा इज़ मैरिड ऑफ एट 14। इरा की मैरिज 14 की एज में हो जाती है, बट रिटर्न्स होम रिजेक्टेड फॉर बीइंग इनफर्टाइल। Kunthi, a seductive woman in the village, tries to blackmail Nathan and Rukmani. Their son Arjun and Thambi become politically active at the tannery and are fired. Sons Raja dies when caught stealing from the tannery. The owner claims they killed him in self-defense. यहाँ पर इस पार्ट के अंदर बहुत सारे पर्सनल लॉसेस रुक्मणी को मिलते हैं, जैसे कि इरा जो कि उसकी बेटी थी, 14 के एज में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन इनफर्टाइल होने की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। कुंती जो कि गांव की एक महिला है, वो नाथन को और रुक्मणी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इनके बेटे अर्जुन और थाम्बी दोनों पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टैनरी से निकाल दिया जाता है, और इनका एक बेटा राजा जो कि टैनरी से कुछ चुराने लगता है, जिसकी वजह से ओनर उसे मार देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने राजा को सेल्फ डिफेंस में मारा है। अब रुक्मणी हेल्पलेस है, कोट बिटवीन हर लव फॉर हर चिल्ड्रन एंड ब्रूचुअलिटी ऑफ चेंजिंग टाइम्स। ये अपने बच्चों के प्रति लव में और चेंज होते हुए टाइम की निर्दयता के अंदर फंस कर रह जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 5, वेयर वी रीड स्टारवेशन, प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्रीफाइस, फेमाइन एंड मॉरल कलेप्स।
इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से गांव के अंदर फेमाइन आता है, एक अकाल आता है और मॉरली लोग करप्ट हो जाते हैं। फेमाइन डिवेस्टेट्स द रीजन, पीपल डाई, फूड वैनिशेस एंड लिटिल कुट्टी फॉल्स इल विद हंगर। Turning point, Ira, unable to watch her youngest brother die, sells her body in the town to buy milk for him. Rukmani devastated. You should not have done this, Ira. You are still a child. Ira firm. So is Kutti. But he was dying. आता है, लोग मरने लगते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है, तो जो छोटा भाई है ईरा का, रुक्मणी का जो छोटा बेटा है लिटिल कुट्टी, वो बीमार हो जाता है भूखा होता है। ईरा उसको मरते हुए नहीं देख पाती और अपनी बॉडी को सेल कर देती है और उसके लिए दूध ले आती है। रुक्मणी ये जानकर डिवेस्टेटेड फील करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ईरा फर्म होती है और कहती है कि वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी। नेक्स्ट इज़ पार्ट नंबर 6, वेयर अर्बन रूइन एंड डेथ इज़ एक्सप्लोर्ड, लैंडलेसनेस एंड द जर्नी टू द सिटी। यहाँ पर फेमाइन के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो लैंडलेस हो जाते हैं गांव में, उनकी ज़मीनें वो बेच चुके हैं या छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो सिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। नाथन एंड रुक्मणी आर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड आफ्टर द लैंडलॉर्ड सेल्स इट। लैंडलॉर्ड के पास वो इसको गिरवी रखते हैं और ये लैंडलॉर्ड उनकी ज़मीनों को बेच देता है नाथन और रुक्मणी की, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दे लीव फॉर द सिटी टू फाइंड मुरुगन देयर सन हु हैड बिकम अ सर्वेंट। अब ये शहर जाते हैं अपने बेटे मुरुगन को ढूंढने के लिए, जो कि शहर में जाकर सर्वेंट बन जाता है। बट दे डिस्कवर मुरुगन हैज़ अबंडन्ड हिज वाइफ एंड चाइल्ड एंड डिसअपियर्ड। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि मुरुगन ने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और वहाँ से कहीं गायब हो चुका था। दे एंड अप होमलेस, स्लीपिंग इन टेम्पल, सर्वाइविंग ऑन स्क्रैप्स। अब नाथन और रुक्मणी दोनों होमलेस है और टेम्पल्स में सोते हैं और स्क्रैप्स के ऊपर यानी बचे खुचे भोजन के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। दे बिगेन वर्किंग एज लोडर्स टू अर्न अ फ्यू कॉइन्स। अब ये बोझा ढोने वाले का काम करने लगते हैं। नाथन बिकम्स वीक एंड इल। इस दौरान नाथन बीमार हो जाता है और बहुत ही वीक हो जाता है। नाथन ऑन हिज डेथ बेड। फाइनली नाथन अपनी मृत्यु के करीब है और कहता है, आई हैव टॉइल्ड माई होल लाइफ। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की। आई हैव लिटल टू शो फॉर इट बट आई हैव लव्ड। मैंने इसके लिए बहुत कम दिखावा किया लेकिन मैंने बहुत प्यार से काम किया। ही डाइज इन रुक्मणीज आर्म आउटसाइड ए टेम्पल। वो एक मंदिर के बाहर रुक्मणी की आर्म्स में मर जाता है। पार्ट नंबर 7, रिटर्न एंड रेजोल्यूशन, वापसी और दृढ़ निश्चयता, कमिंग फुल सर्कल। और ये क्या है, कमिंग फुल सर्कल मतलब एक फुल सर्कल को शो करता है ये पार्ट, यानी कि फुल जर्नी को शो करता है रुक्मणी की। रुक्मणी रिटर्न्स टू द विलेज ब्रिंगिंग नाथन्स एशेस एंड लिटल पुली, अ स्ट्रीट अर्चिन हु लॉस्ट हिज फिंगर्स टू डिसीज। रुक्मणी विलेज वापस आती है नाथन की अस्थियों के साथ और लिटल पुली के साथ। पुली कौन है, एक स्ट्रीट अर्चिन, एक गली में घूमने वाला छोटा बच्चा लड़का है जिसने एक बीमारी के कारण अपनी उंगलियां खो दी थी। हर सन सेल्वम नाउ ट्रेनिंग विद कैनी एट ए रूरल हॉस्पिटल टेक्स हर इन। उसका बेटा सेल्वम जो कि कैनी के पास ट्रेनिंग लेता है एक रूरल हॉस्पिटल में, वो उसको साथ ले जाता है। द नॉवल एंड्स विद ए नोट ऑफ रेजिलेंस एंड क्वाइट फेथ। और ये नॉवल रेजिलेंस यानी कि आत्मनिर्भरता और क्वाइट फेथ के साथ एंड हो जाता है। रुक्मणी की क्लोजिंग लाइन्स हैं एंड में, इट इज़ नॉट फॉर आवर सेल्फ दैट वी आर इम्पोर्टेंट बट फॉर वट वी डू एंड हाउ वी एंड्योर। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम क्या हैं, बल्कि जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि हम करते क्या हैं लाइफ में और हम क्या सहन करते हैं लाइफ में। ये सब इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि ये इम्पोर्टेंस रखता है कि हम लाइफ के अंदर क्या हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट क्रिटिकल रिसेप्शन द नॉवल गेट। प्रेज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर इमोशनल पावर, स्पेशली रुक्मणीज करेक्टर। इसको वर्ल्ड वाइड प्रेज मिली। सीन एज अ फेमिनिस्ट रूरल एपिक, इसे एक फेमिनिस्ट रूरल एपिक के तौर पर देखा गया। अदर सेज इट अ वेस्टर्न गेज ऑन ईस्टर्न सफरिंग, और ये भी माना गया स्कॉलर्स के द्वारा कि ईस्टर्न सफरिंग के ऊपर वेस्टर्न क्या रवैया था वो ये नावल दर्शाता है। के.आर. श्रीनिवास लिंजर कॉल्ड इट एन इंडियन वुमेन्स क्वाइट ट्रेजिडी टोल्ड विद लिरिकल डिग्निटी, कि ये नावल एक इंडियन वुमेन की शांत ट्रेजिडी है जो कि लिरिकल डिग्निटी के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसा किसने कहा है, के.आर. श्रीनिवास लिंजर ने।
Modern critics admire its environmental, feminist, and post colonial reading.